clashes that were reported in Nagpur. For the first time, a political link has come to fore in the Nagpur violence case. An alleged plotter, who is the Nagpur president of a political outfit called Minority Democratic Party, has been named in the FIR and has been arrested as well. The FIR against him is for allegedly gathering the crowd illegally despite police warning. The FIR states very clearly that they gathered 400 to 500 people of their community with the intention of inciting riots. They were informed through repeated announcements by the cops that the gathering wasn't allowed. But despite this, crowds swelled and insightful slogans were raised. Let's take a look at the charges against the leader that we are talking about, Fahim Khan. Openly, he gathered people there, and the FIR also talks about his role as to how 300 to 400 people were gathered there. Continuous announcements were being made, and the FIR also states that the intention behind this was to incite riots. There were repeated announcements by the cops that this gathering is not allowed, but despite that, people continued to gather there, and there were insightful slogans that were raised. Now, the role of Fahim Khan has come to fore. He has been arrested as well. In fact, on the day of violence, Fahim Shamim also led a group of people to the local police station and alleged that police personnel targeted people of one community only. A video has surfaced showing Fahim Shamim Khan addressing his supporters and media personnel outside the police station. Watch how he engaged in instigating people against the police. पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया। आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। Now, Nagpur Commissioner of Police said that the investigation is being done to ascertain if Fahim Shamim Khan and others instigated the crowd and provoked violence as well. Listen in. हमारे पास जो अरेस्ट हुए हैं उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, क्योंकि हम लोग हमारा मेन अभी जो फोकस है वो शांतता रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, और दोबारा से इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। इन्वेस्टिगेशन इसमें हमारी चल रही है। इसके बारे में भी बोलना अभी मतलब मुश्किल है बताना, परंतु जैसी ही सामान्य स्थिति होगी हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग कम कर देंगे। So Fahim Shamim Khan has been arrested. We also played out his reaction where he was allegedly trying to instigate people against the police personnel, and in detail, you also heard the top cop of Nagpur talking about the investigation which is being done to ascertain if Fahim Shamim Khan and others were responsible for instigating the crowd and provoking them. Were they the masterminds, or there are others who are hiding behind people like Fahim Shamim Khan, and there's a larger group that is operating? Let's go across to Makran for more on this. Makran, पुलिस भी अभी यही जानने की कोशिश कर रही होगी कि क्या केवल Fahim Shamim Khan responsible है इसके लिए, or are there other people like Fahim Shamim Khan or perhaps a larger group operating? फहीम शमीम खान को गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। हालांकि ऑफिशियल्स अभी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, बट क्या यही मास्टरमाइंड था, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल चल रहा है। क्योंकि मास्टरमाइंड इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक पूरा षड्यंत्र जो है वो नजर आ रहा है साफ तौर पर, और षड्यंत्र की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ पर लगातार हम ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं और ये सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं कि एक तरह का षड्यंत्र था। इतना बड़ा मॉब अगर पत्थर लेकर, पेट्रोल बम लेकर और तमाम हथियार लेकर अगर घरों पर हमले कर रहा है तो जाहिर है कि उसको करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और साथ ही साथ फहीम खान जो है, इस फहीम खान नाम के शख्स का ताल्लुक भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जो एक बार चुनाव भी लड़ चुकी है, तो जाहिर है कि पॉलिटिकल कनेक्शन इस बात का निकला है। सीपी ने भी इसको कंफर्म किया है और सीपी का ये कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहला जो मोटिव है वो सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। तो जाहिर है कि उनका पूरा जो टारगेट है वो यही है। अभी भी मैं आपको तस्वीरें और दिखाऊंगा, यहाँ पर तमाम जो चिटनिस पार्क का पूरा एरिया है। थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ मकरन, मैं आपके पास वापस आऊंगी, उन तस्वीरों को हम देखेंगे और जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं उस पर और डिस्कशन भी करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द एफआईआर. मोर skeletons are tumbling out, revealing how the murderous mob not only attacked police personnel with dangerous weapons such as knives, swords and axes, but they preyed on women police officers as well. Times Now has access
accessed one of the 5 FIRs registered in the Nagpur violence case, which details how rioters sexually harassed a female officer from riot control police. In this FIR, the complainant, who is also a cop, alleges that the mob tried to disrobe a lady police officer when she was on duty, trying to control the situation. She was allegedly touched inappropriately, and the mob also made obscene remarks on female officials. Let's in fact break down the details of the FIR one by one. What has been mentioned in the FIR? These are details that Times Now has accessed. The damning revelations that are coming to fore. Revelation number 1, these are basically the charges that have been leveled. This is as per the FIR. Illegally gathered 50 to 60 people. I believe these are charges against Fahim Shamim Khan. Despite police warning, the crowd kept on reaching there. The crowd was gathered despite repeated announcements that were being made. Charge number 3 against Fahim is that he led crowd and spread false rumors. We also heard his reaction. The allegation he is trying to instigate people against the police personnel as well. Charge number 4, mob shouted slogans and engaged in incitement. Mob brandished axes, stones and sticks. So they were armed with weapons. These are details as per the FIR that we have accessed. Let me go back to Makrand, who continues to be with us on the broadcast. Makrand, जो FIR हमने एक्सेस की है, उसमें फहीम शमीम खान के खिलाफ जो चार्जेस हैं, लोगों को वहां पर गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा करना, रिपीटेड अनाउंसमेंट्स पुलिस की तरफ से की जा रही थी, उसके बावजूद लोगों को वहां लाना और उसके बाद पुलिस के खिलाफ उनको उकसाना, भड़काऊ वहां पर नारे दिए जा रहे थे और लोग हथियार से लैस थे। ये सारी बातें FIR में मेंशन की गई हैं। जी बिल्कुल, और FIR का मैं एक हिस्सा पढ़ के बताना चाहूंगा। ये हालांकि मराठी में है, लेकिन उसमें बार बार ये कहा जा रहा था अभी पुलिस को दिखाते हैं और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है, इन्होंने ही सारा खेल किया है, इन्होंने ही ये सब किया है, इस तरह के नारे वहां पर लगाए गए। इसके अलावा जो फहीम खान है उसने इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके थाने पर पहले नारेबाजी की और उसके बाद में जो मॉब इकट्ठा हुआ उसका भी मास्टरमाइंड फहीम खान को ही बताया जा रहा है। और इस तरह के नारे औरंगजेब को लेकर के नारे लगाना थाने के बाहर खड़े होकर, तो जाहिर है कि एक षड्यंत्र का ये कहीं ना कहीं हिस्सा हो सकता है, ये माना है पुलिस ने। और इसी के लिए लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। 51 लोगों को पहले 51 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, काफी लोगों को उसमें हिरासत में लिया गया है। बहुत सारे नाबालिग हैं, क्योंकि देखने में आया है कि बहुत सारे नाबालिग बच्चे फ्रंट में आ जाते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं और उनको जानबूझ के पीछे से उकसाया जाता है पत्थरबाजी करने के लिए और आगजनी करने के लिए। तो यहां पर सुरक्षा को लेकर के सवाल इसीलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि अगर 700-800 लोग कहीं हमला कर रहे हैं, 1500 लोग अगर कहीं इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन पुलिस ने समय रहते हालात को और बेकाबू नहीं होने दिया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से हमने बात की तो उनका कहना था कि हमने आंदोलन किया था वो पुलिस और प्रशासन की अनुमति के साथ किया था। अगर उसमें किसी तरह की आपत्ति किसी भी वर्ग को थी तो वो कानूनी रूप से शिकायत करके या फिर प्रदर्शन की अनुमति लेकर प्रदर्शन कर सकता था। लेकिन ये पूरा मुआब इकट्ठा करके पत्थरबाजी करके ये चीज साबित करने की कोशिश की गई कि हम हिंसा से जवाब देना जानते हैं, ये गलत है। ये लोकतांत्रिक परंपरा में गलत परंपराएं डाली जा रही है। तो इस तरह की बातें विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की जा रही है, लेकिन पत्थरबाजी बिल्कुल भी उचित नहीं है और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ। और FIR में फिलहाल फहीम शमीम खान के रोल के बारे में लिखा गया है, लेकिन क्या वो मास्टरमाइंड है मकरंद और अदर पीपल हु आर ऑपरेटिंग बिहाइंड, hiding behind people like Fahim Shamim Khan? That is a part of the investigation. Stay on with us. Now, the Maharashtra Cyber Department has deleted 800 social media posts related to Aurangzeb and Nagpur violence in Nagpur and Chhatrapati Sambhajinagar area. Around 70 URLs were used to spread these social media posts which have been identified. Now, action will be taken against all of them soon. Makrand continues to be with us on the broadcast. Makrand, एक तो protest हुआ, उसके बाद एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि औरंगजेब को लेकर के कोई उसके फेवर में, कोई उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का भी रोल रहा। कई लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके रूमर्स फैलाए, अफवाहें फैलाए और उसके खिलाफ क्रैकडाउन भी हो रहा है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का एक अहम रोल रहा है। मैं पहले तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनको बार बार यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ पे एरिया को खाली कराया जा रहा है। जहाँ हमने सोशल मीडिया की बात की, सबसे अहम रोल सोशल मीडिया का इसलिए भी आ जाता है क्योंकि लोगों को इकट्ठा होने के लिए या मोबिलाइज करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है। जैसे
व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, दूसरे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनमें ग्रुप्स बनाकर मैसेज स्प्रेड किया जाता है। अफवाह फैलाने के लिए ये बहुत आसान तरीका है किसी के लिए भी, और उपद्रव के साथ साथ मैं कहूंगा शरारती तत्व भी कई बार ऐसे होते हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाकर सिर्फ किनारे खड़े हो जाते हैं और जो हालात बेकाबू होते हैं उनको लेकर वो केवल उसके मजे लेते हैं और माहौल बिगड़ता हुआ देखकर उन्हें अच्छा लगता है। इस तरह के भी उपद्रवी तत्व हमने देखे हैं, पुलिस की जांच में कई बार इस तरह की चीजें सामने भी आई हैं। लेकिन यहां पर हालात कुछ और हैं, यहां पर बात कुछ और है, क्योंकि षड्यंत्रकारी जो थे उसमें जैसे फहीम खान है, फहीम खान ने साफ तौर पर लोगों को बुलाया, उकसाया, नारेबाजी की, औरंगजेब को के फेवर में नारे लगाए और थाने पर उपद्रव किया। उसके बाद वही शख्स यहां पर आता है जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये चिटनिस पार्क का एरिया है, यहां पर नारेबाजी होती है, मॉब इकट्ठा होता है और वो मस्जिद, मेरे पीछे एक मस्जिद मौजूद है जहां पर आरोप लग रहे हैं कि उस दिन हर रोज यहां नमाज होती है लेकिन 50-60 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन उस दिन अचानक यहां पर 1500 लोग नमाज पढ़ने आते हैं। तो ये क्या था? ये क्या षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था? और अगर इतने सारे लोग एक साथ यहां पर आ रहे थे तो क्या इसकी कोई पहली सूचना जो है वो पुलिस इंटेलिजेंस पुलिस की अगर माने तो अनाउंसमेंट्स लगातार हो रही थी मकरंद, लोगों से कहा जा रहा था कि वो भीड़ वहां पर इकट्ठा ना हो, लोग वहां से चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद फहीम शमीम खान वहां पर लोगों को इकट्ठा कर रहा था। अगर पुलिस की माने और एफआईआर की माने तो उस वक्त स्थिति ये थी दैट इलीगली पीपल एंड द क्राउड वाज बीइंग गैदर्ड देयर। मकरंद, प्लीज स्टे ऑन विद अस, लेट मी शेयर मोर डिटेल्स विद आवर व्यूअर्स। While the rioters attacked police personnel and allegedly sexually harassed a female cop, open defiance was on display when cops went to arrest a riot accused in Hansapuri of Nagpur last night. Cops reached Hansapuri after they were informed that one of the accused was spotted near a shop there. A large crowd gathered despite curfew restrictions in place. However, the cops later managed to arrest the accused, and here's a report from spot. I am on Khadan Road in Dolma Chowk, Hansapuri. Hansapuri was also one of those 5 locations where massive violence was seen between two communities on Monday. Now, a day after, on Tuesday late night as well, one of the main accused of the Nagpur violence, he was seen here in the cameras. Subsequently, the locals from here basically informed the Nagpur police. Nagpur police also reached here to arrest the main accused. That is when people from a certain community, from the community of the accused, tried to save him. The cops nabbed the accused from this shop which is named as Nawab. You can see Hansapuri was majorly affected in the Nagpur violence as well. All the shops, my video journalist Sachin Yeram is showing you, all shops basically are still shut over here. So be it Chitnis Park, be it Mahal or Hansapuri, violence was seen here, and situation is slowly crawling back to normalcy now in those affected areas of Nagpur. गुप्ता जी, आप थोड़ी बातें हमें बता रहे थे कि यहाँ क्या कुछ हुआ, एग्जैक्टली बताइए कि आपने क्या देखा, क्या कुछ हुआ यहाँ? ऐसा है, रिकॉर्डिंग देख रहे थे सब मोबाइल में, जो दंगों की चालू है उसके अंदर एक लड़के की पहचान हुई जो कलर की शर्ट दंगे में पहना था, वो भी कल पहना था। तो उसको पकड़ने के बाद उसको रखे, तो यहाँ थोड़ा सा तनाव हुआ तो पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए, 10-15 मिनट में उनको पुलिस वालों के हैंडओवर हमने कर दिए। और 7-8 लड़के 10 लड़के कल पीछे की ज्योति नगर बस्ती में घुसे थे, उनको गाला गुप्ता पकड़े थे, पत्थर मार रहे थे, तो उनको दौड़ाए और वो भागे पूरे। तो फिर पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने पूरा वातावरण उनको हैंडल कर लिया। डीसीपी मैडम सब आई थी, उन्होंने पूरा वातावरण शांत करा के सब शांत हो गया माहौल। विजेंद्र जी, एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ? आपका घर बिल्कुल यहीं पर है, आपने क्या देखा, पूरी घटना बताइए। 17 तारीख को रात 10:30 बजे हम बस्ती में अचानक से 7-8 लड़के जो नकाब पहने हुए थे और जिनके हाथों में लाठियां थी, उन्होंने यहाँ पर एंट्री किया। जब एंट्री किया तो उन्होंने हम लोगों का हुजूम खड़ा देखा तो वो वापस चले गए। उनकी मंशा यहाँ पर तोड़फोड़ करने की थी, हाथों में लाठियां थी, क्योंकि वो हमारी गाड़ियों के पास खड़े होकर ही कुछ विचार कर ही रहे थे उसको तोड़ने का। अचानक हमारी भीड़ देख के वो लोग वापस चले गए। तो उसको वहाँ पर कल बस्ती के लड़कों ने पकड़ा और पकड़ने की वजह से यहाँ पे दुकान वाले से बोला कि इस लड़के को हमारे हवाले कर दो, लेकिन उस झंझट में यहाँ पे अराउंड 200-250 लोगों का मजमा जमा हो गया और तब पुलिस आई और पुलिस ने वो लड़के को लेकर चले गई। ये वो सीसीटीवी है जो आपको टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है कि यहाँ पर एग्जैक्टली बीती रात में देखिए क्या कुछ हुआ है। हाँ, ये देखिए,
ये एक वो सीसीटीवी है जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि कैसे जो एक भीड़ है दुकान से वो नॉर्मल रास्ता चल रहा है। ये दोंडबा चौक खदान की तस्वीर है। यहाँ आप देखते हैं कि एक ग्रुप जो है हाथों में बम्बू लिए, चेहरा ढके, डंडे लिए यहाँ पर पहुंचता है और आप देख सकते हैं कि पूरी मंशा साफ साफ नजर आ रही है कि उनको उपद्रव यहाँ पर मचाना है। और मैं ये देखते हैं आप भागते हुए एक तस्वीर आती है। एक बार मैं फिर पीछे जाऊंगी, आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि आइडेंटिफाई हुआ शख्स कहाँ से है। ये देखिए, ये जो लड़का आपको ग्रीन शर्ट में यहाँ नजर आ रहा है चेक्स के, इसे आइडेंटिफाई किया गया कि इसी ने यहाँ पर दंगाई करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल वही लड़का है सर? जी हाँ, दंगा करने के लिए जो ग्रुप आया था 8 लड़कों का, उसमें से एक लड़का है जो यहाँ पर मिला है और उसको कल पब्लिक ने पकड़ा है। All right, let's in fact show you that CCTV that Shivani was just talking about in that report. One local with Shivani was describing what transpired. We've accessed that CCTV. Take a look at what happened. This is 7:57 in the evening. First, and these are rioters who gathered outside a house where the cops took cover. These are people running helter-skelter on the roads when they saw a crowd, a mob running behind them. And then you see these cops, perhaps they were outnumbered, that's why entering a house, taking cover, and a local right behind them parks his vehicle and moves inside the house. Rioters gather there, they vandalized that vehicle and stone pelting also took place. So this is how the cops and other people were hounded. They were perhaps outnumbered. They take shelter inside a home and the rioters gather right outside that home, trying to attack the people, vandalizing and damaging the vehicles that were parked right outside this house. This is exactly the CCTV footage that the man talking to Shivani in that particular report was explaining as to what transpired and how people and cops were targeted. Meanwhile, the probe has widened into Nagpur violence, and a possible Kashmir stone pelting pattern is also under the lens. Sources in Maharashtra Home Department say that agencies have found stone pelting patterns similar to the one that used to be seen in Kashmir. The crowd was mobilized within hours and the mob pelted stones that were lying in the area. Sources are also telling your channel that the primary investigation report of Nagpur riots will be sent to the Union Home Department. Now, Maharashtra ATS has also swung into action and is running a parallel investigation. According to sources, while the state ATS hasn't officially been given the probe, they have not been officially handed over the investigation, but the anti-terror squad has stepped in and has activated its intel. ATS is looking into 3 lines of inquiries. Was there a pattern in the stone pelting? Was this riot pre-planned? Did the riots happen on someone's instructions, or did the riot take place due to instigation by local people? These are the angles that the ATS is going to investigate.